आज अमरनाथ यात्रा और उसकी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जो उपेक्षा और दुर्दशा की जा रही है, इस पर ही मैं केंद्रित करूंगा। One of the highest revered and most religious pilgrimage of Hindus, Amarnath Yatra, has become a target of Jammu Kashmir state government's lethargic approach and a complete lack of facilities and infrastructure, resulting in one of the highest number of deaths of pilgrims on their way to shrine. This is most deplorable. Of late, the Jammu Kashmir state government and the separatist elements of the valley have been demanding curtailment of the yatra, stoppage of the yatra, and reduction in the duration of the yatra. And they have succeeded at least in one part by compelling the government to reduce the duration of the yatra, which has resulted in the tragic situation contributing to the increasing number of deaths of the pilgrims. In just 17 days, more than 60 pilgrims have died on their way to shrine. And they are not just aged people, young people of the age group of 22 to 26, including army jawans and local porters who are young, acclimatized, who know the track. They have been dying this year. One of the major reasons is the reduction in the duration of the yatra. The surprising and shocking thing is, we have not heard a single word of condolence, anxiety, or concern from the Chief Minister of Jammu Kashmir, Mr. Umar Abdullah. He had been advising the presidential candidate of the opposition, Mr. Sangma, on how to conduct himself. But who should advise Mr. Umar Abdullah that when such a tragic incidents are taking place in his state, is it not the responsibility of the state government to go and check the situation, review the facilities? Not only that, Mr. Umar Abdullah had chosen not to go to the site of Amarnath pilgrimage. He has not expressed any word on the extraordinarily increasing number of deaths of the Amarnath pilgrims. The Amarnath Yatra is as old as the recorded history goes to 3 BC. And for the last many centuries, it has become a great symbol of communal harmony. It is conducted by the joint efforts of Hindus and Muslims, and they have been also benefiting the local people. Their economy benefits from this yatra enormously. The yatris from all over the India and from abroad, they come to this yatra and they contribute to the economy of the state. But what do they get in return? The health checkup centers have been established at an interval of more than 6 to 10 kilometers. There is no emergency medical help facility. They have also introduced a very strange queue system at the altitude of 11,000 to 13,500, and this is resulting in more chaos and more deaths.
हिंदुओं की विश्व में सबसे महान और प्रतिष्ठित अमरनाथ यात्रा में इस वर्ष सर्वाधिक संख्या में यात्रियों की मृत्यु के समाचार मिल रहे हैं। 17 दिन में 60 से अधिक अमरनाथ यात्रियों की मृत्यु हो चुकी है। आश्चर्य की बात है कि इस बारे में जम्मू कश्मीर की प्रदेश सरकार ने एक शब्द भी न तो संवेदना का कहा है और न ही यह आश्वासन दिया है कि वह इस महान यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी फिर से समीक्षा करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला यात्रियों की इस असाधारण मृत्यु पर खामोश है और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या वे समझते हैं कि यह पूरी यात्रा केवल श्राइन बोर्ड या सेना के हवाले कर दी गई है? और भले ही यह यात्रा पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हो रही हो, लेकिन इस यात्रा से जम्मू कश्मीर सरकार का कोई लेना देना नहीं है और जो कुछ भी जवाब देना होगा वह गवर्नर देंगे और या सेना के लोग देंगे। हम ये श्री उमर अब्दुल्ला से पूछना चाहते हैं कि इस साल जो असाधारण संख्या हुई है यात्रियों की मृत्यु की, इस बारे में राज्य सरकार खामोशी क्यों ओढ़े हुए है? पिछले अनेक वर्षों से इस यात्रा को बंद करने के लिए, इसमें बाधाएं डालने के लिए प्रदेश के अलगाववादियों को पूरी छूट दी गई और स्वयं प्रदेश सरकार ने इसमें हिस्सेदारी की। हम ये प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वह अमरनाथ यात्रा को निरुत्साहित करने और धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। 4 महीने की यात्रा 2 महीने तक की गई, 2 महीने की यात्रा 55 दिन, 48 दिन, 45 दिन की गई और इस वर्ष यह यात्रा केवल 39 दिन की गई है। और अब कश्मीर घाटी से अलगाववादियों के बयान आ रहे हैं कि यह यात्रा अब 15 दिन तक सीमित कर देनी चाहिए। क्या वे नहीं चाहते कि जिस कश्मीर घाटी को हिंदू विहीन कर दिया गया, अब वहां हिंदू तीर्थ यात्रा भी बंद हो जाए? यदि जम्मू वैष्णो देवी यात्रा के बिना अधूरा है तो क्या कश्मीर घाटी अमरनाथ यात्रा के बिना पूरी रहेगी? यह श्री उमर अब्दुल्ला से हमारा सवाल है। यह भी है कि वहां अमरनाथ यात्रा में यात्रियों की सुविधाएं कुछ नहीं दी गई हैं। जो मेडिकल चेकअप सेंटर्स हैं वो 6 किलोमीटर से 10 किलोमीटर दूर रखे गए हैं। एक अजीबोगरीब पंक्ति बनाने की व्यवस्था वहां पे लागू की गई है इस साल। अब 12,000 फीट की ऊंचाई पर उन पहाड़ियों पे वे पंक्तियां बनाते हैं। यात्री देखते हैं कि उनके सामने 5,000 10,000 यात्रियों की भीड़ है। जैसे ही आधे घंटे के लिए यात्रा शुरू होती है, धक्का मुक्की शुरू होती है, आगे बढ़ने के लिए होड़ लगती है, लोग घाटी में नीचे गिरकर मर रहे हैं। घोड़े सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन घोड़े घाटी में नीचे गिर रहे हैं क्योंकि कोई वहां पे व्यवस्था नहीं की गई है। अवधि घटा देने के कारण यात्रियों में उद्विग्नता, तनाव और तुरंत एक सीमित अवधि में यात्रा पूरी करने की एक उद्विग्नता बढ़ जाती है। इस कारण कई बार तबीयत खराब होने पर भी यात्री समझता है कि वह अगर बहुत अधिक भीड़ वाले हेल्थ सेंटर में जाएगा जहां डॉक्टर को घेरे हुए सैकड़ों यात्री होते हैं तो उसकी यात्रा शायद अधूरी रह जाए, तो वो सीधे आगे बढ़ना चाहता है। इसका पूरा दोष इस बात पर है कि यात्रा की अवधि कम की गई और श्राइन बोर्ड ने यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं वहां पर नहीं दी गई। पिछले साल भी लगभग 6.5 लाख यात्री गए थे, लेकिन यात्रियों की आकस्मिक और प्राकृतिक कारणों से मृत्यु का जो औसत है वो प्रतिदिन 1 से आगे नहीं बढ़ा था। इस वर्ष तिगुना आंकड़ा पहले 17 दिन में ही आ गया है। यह क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके लिए श्राइन बोर्ड को और जम्मू कश्मीर सरकार को तुरंत जांच करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए और उसके लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। हेलीकॉप्टर के लिए भी उन्होंने जो व्यवस्था की है, जो बीमार है, अशक्त है, किसी प्रकार से पैसा देकर हेलीकॉप्टर से जाते हैं, अब
हेलीकॉप्टर इतनी दूर उतारा जा रहा है कि बीमार लोग भी 6.5 किलोमीटर पैदल चलने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। और गलत आंकड़े श्राइन बोर्ड दे रहा है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का पहले दिन की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 9 जुलाई को 43,401 भक्तों ने दर्शन किए। 7 बजे से 7 बजे तक दर्शन होते हैं, सुबह 7 से रात्रि 7 बजे तक। अगर एक सेकंड भी जोड़ा जाए और यह माना जाए कि एक दर्शनार्थी केवल 1 सेकंड में दर्शन करके बाहर निकल रहा है, तो भी यह आंकड़ा ठीक नहीं बैठता है। तो ये गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, और ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार उन अलगाववादियों और भारत विरोधी तथा इस यात्रा के विरोधी तत्वों के दबाव में काम कर रही है, जो अमरनाथ यात्रा को समाप्त करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। हम श्री उमर अब्दुल्ला और वहाँ के राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस परिस्थिति के बारे में बयान दें। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री श्री चिदंबरम और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री वोहरा से मिलकर देश के हिंदू समाज की वह चिंता उनको अवगत कराएगा और उनसे स्पष्टीकरण चाहेगा कि इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु होने के बावजूद गृह मंत्रालय ने इस बारे में न तो कोई टिप्पणी करना आवश्यक समझा और न ही जम्मू कश्मीर सरकार को इस परिस्थिति पर रिपोर्ट देकर उसकी समीक्षा करने के लिए कहा, और न ही उन्होंने सुविधाएं दी हैं। A high-level delegation of the parliamentarians of BJP is going to meet Home Minister Shri Chidambaram and Jammu Kashmir Governor Shri Vohra regarding the high number of deaths occurring this year. We would like to have them explain why such a high number of deaths are occurring this year, which is extraordinary and unprecedented, why the Home Minister had chosen to be silent on these deaths and has not asked for a report from the Jammu Kashmir government and for the review of facilities being given to the pilgrims and the security being provided to them. We wholeheartedly appreciate the role of the army in helping the pilgrims. And we know that if army jawans were not there helping the pilgrims, the death toll would have risen much higher. अमरनाथ यात्रा में भारत के सैनिकों ने जो मदद दी है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। अगर भारत के इन जवानों ने अमरनाथ यात्रियों की इतनी दिल से और भरसक मदद नहीं की होती तो अमरनाथ यात्रियों की मृत्यु की दर बहुत अधिक बढ़ सकती थी। मित्रों, अमरनाथ यात्रा के बारे में यही 2-3 बिंदु आपके सामने रखने थे। इससे पहले भी मैं बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्री बहुत बहादुरी और हिम्मत के साथ जाते हैं। आतंकवादियों के हमले के बावजूद वो गए, तूफान और बारिश और बर्फबारी के बावजूद वो गए, और तमाम असुविधाओं के बावजूद भी हर साल अमरनाथ यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। हम उनकी हिम्मत और उनकी धर्मनिष्ठा को दाद देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार की संवेदनहीनता और जिस प्रकार से वहां हिंदू तीर्थयात्रियों को बेहद तकलीफों का सामना करते हुए अब तक की सबसे बड़ी मृत्यु की इन आकस्मिक घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हम जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा यात्रा की अवधि घटाए जाने को सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और भाजपा का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री और राज्यपाल वोहरा से श्रीनगर में और दिल्ली में मिलेगा। धन्यवाद। हमने उनसे समय मांगा है, हमें उम्मीद है आज शाम तक हमें समय मिल जाएगा। उन दोनों कार्यालयों में हमने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है।